Hello and welcome back. Today we are going to read the final part of our lesson. For God's sake, hold thy tongue. Dear students, in the previous videos, we have discussed about two different kinds of evils which are related to the tongue, and those evils are backbiting and scandal mongering. And we also learned that all the religions like Islam, Hinduism, Christianity, Buddhism, or Sikhism hold the same opinion about these kinds of evils, that is, they strongly condemn or denounce these kinds of acts, these kinds of sins. Now let's read further and see what Rabbi Simon has to say about this kind of evil. Dear students, Rabbi Simon once asked his servant, "Go to the market and buy something good to eat." प्यारे बच्चों, आज हम फॉर गॉड सेक होल्ड द टंग जो लेसन है उसका आखिरी हिस्सा लेकर आए हैं। हमने पिछले वीडियोस में दो बड़े गुनाहों के बारे में पढ़ा है, वो हैं बैकबाइटिंग और स्कैंडल मॉन्गरिंग। तो हमने ये भी देखा है कि जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, जैसे इस्लाम है, हिंदुइज़म है, क्रिश्चियनिटी है या सिखिज़म है, बुद्धिज़्म है, उन्होंने उनकी राय जो इन दो गुनाहों के मुतलिक है, वो एक ही है कि वो इन गुनाहों को पुरजोर अल्फाज में इनकी मजम्मत करते हैं। दे स्ट्रांगली कंडेम इट, वो बहुत पुरजोर लफ्ज़ में इनकी मजम्मत करते हैं। तो आज हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रबी सिमन क्या कहते हैं। रबी सिमन ने एक दफ़ा अपने नौकर से कहा, गो टू द मार्केट एंड बाय समथिंग गुड टू ईट। बाज़ार से कोई अच्छी चीज़ खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ लेके आओ। एंड व्हाट डिड ही बाय? ही बॉट अ टंग। ही बॉट दिस टंग। तो रबी सिमन जब मार्केट गए और वहाँ से उसने ये चीज़ लाई, ये टंग, ज़ुबान लाई। एंड ऑन अनदर ओकेजन रबी सिमन again asked his servant to go to the market and buy me something that is not good. He went to the market and bought the same thing again. He got the same thing again. He got the tongue again. उसने दोबारा, रबी सिमन ने दोबारा उसको कहा, एक दफ़ा अगली दफ़ा उसको कहा कि मार्केट से कोई ऐसी चीज़ लाओ जो ठीक नहीं होगा, जो ख़राब होगी। तो उसने फिर से वही ज़ुबान लाई। नाउ रबी सिमन वॉज कन्फ्यूज्ड एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी मच एंग्री। वो कन्फ्यूज हो गया और उसको गुस्सा भी आया। Because when he noticed that he got the same thing twice, जब उसने देखा कि उसने दो मरतबा एक ही चीज़ लाई। When I told him to get something good to eat, he bought a tongue, and when I told him to get something bad, he again got the tongue. जब उसने उसको बोला था अच्छी चीज़ खाने के लिए लाओ, उसने टांग लाई। जब उसको बोला कि कोई ख़राब चीज़ लाओ खाने के लिए, तो उसने वही टांग लाई। Now he was confused. उसको वो कन्फ्यूजन में पड़ गया। And he was also very much angry. वो उसको गुस्सा भी आया था। So he wanted his servant to explain it. वो चाहता था नौकर से, आप इसको एक्सप्लेन करो। Why did you get the same thing?
आपने एक ही चीज़ 2 बार क्यों लाई? What's the matter? What does it mean? इसका मतलब क्या है? Then his servant explained. The servant. तो servant ने explanation दी. He has to explain his position before Rabbi Simon. Then he explained. From the tongue issues the good and also the bad. There is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil one. तो उसके सर्वेंट ने जवाब दिया कि ज़ुबान से ही अच्छे बोल निकलते हैं और ज़ुबान से ही बुरे बोल भी निकलते हैं. ज़ुबान से अच्छे बोल भी निकलते हैं और बुरे बोल भी निकलते हैं. If you use your soft tongue, if you use a good language, it is good for others and it will make others feel comfortable. And if you use bad language, it will hurt the feelings of others. अगर आप अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करते हो, अच्छे बोल बोलते हो, तो आपके लिए अच्छा और दूसरों के लिए भी अच्छा है. दूसरे खुश हो जाएंगे, they will feel comfortable. और अगर आपकी ज़ुबान से बुरे बोल निकलते हैं, if you use bad language, it will hurt the feelings of others. जो दूसरों के जज्बात हैं उनको ठेस पहुंचेगी, वो मजरूह हो जाएंगे. There is nothing better than a good tongue. If you use a good language, if you use a polite language, then your tongue is the best one. अगर आप अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करते हो तो आपकी ज़ुबान सबसे अच्छी है. And nothing worse than an evil one. If you use bad language, अगर बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर बुरे अल्फाज ज़ुबान से निकलेंगे तो वो ज़ुबान सबसे बुरी ज़ुबान होगी, वो सबसे ख़राब ज़ुबान होगी. Once Rabbi Simon invited all his disciples to a great feast, to a great meal. एक दफ़ा रबी सिमन ने अपने डिसाइपल्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने शागिर्दों को एक दावत पर बुलाया. एक्चुअली ही वांटेड टू टीच देम अ लेसन. वो उनको एक लेसन सिखाना चाहता था. ही वांटेड टू टीच देम समथिंग न्यू. तो उसने उनको दावत पर बुलाया. एंड रबी सिमन सर्व्ड देम द सेम थिंग, द टंग. उसने उनको फेस्ट पर, दावत पर ये टंग सर्व किए. बट देयर वर 2 different kinds of tongues. Some of them were hard and some of them were soft. ये जो ज़ुबान उसने उनको सर्व किया खाने पर, कुछ ज़ुबानें सॉफ्ट थी, नरम थी, और कुछ ज़ुबानें जो हैं वो हार्ड थी. And what happened? The disciples ate the soft ones and didn't touch the hard ones. Disciples जो थे, शागिर्द जो थे, उन्होंने सॉफ्ट टंग को चूज़ किया और खा लिया, और जो हार्ड टंग थी उसको ऐसे ही रहने दिया. They let them untouched. उनको टच भी नहीं किया. When Rabbi Simon noticed this, जब रबी सिमन ने ये देखा कि उन्होंने सॉफ्ट टंग खा ली, हार्ड को उधर ही रख दिया, तो रबी सिमन ने उनसे कहा, एज यू चूज द सॉफ्ट टंग्स एंड रिजेक्ट द हार्ड वंस, सो ऑल्सो यूज ओनली अ सॉफ्ट टंग इन योर कॉन्वर्सेशन विद वन अनदर. तो रबी सिमन ने जो लेसन देना था वो दे दिया और उनसे कहा, एज यू चूज द सॉफ्ट टंग्स, आपने सॉफ्ट टंग का आपने सॉफ्ट टंग को चूज़ किया है, तो इसी तरह आप ज़िंदगी में सॉफ्ट टंग यूज़ करो. यूज़ गुड लैंग्वेज, यूज़ पोलाइट लैंग्वेज. whenever you conversate or whenever you enter into a conversation or discussion with somebody or with your friends or with other people, use the soft tongue. यूज़ गुड लैंग्वेज, पोलाइट लैंग्वेज. जब भी आप गुफ्तगू करोगे, किसी के साथ बात करोगे, तो पोलाइट इखलाक, आपकी इखलाक अच्छी होनी चाहिए, आपकी ज़ुबान मीठी होनी चाहिए, आपकी ज़ुबान से अच्छे बोल निकलने चाहिए. नेवर यूज़ बैड लैंग्वेज.
बुरी ज़बान का, गलत ज़बानी का इस्तेमाल कभी नहीं करना। In this context, there is a quotation by Collins worth mentioning here. यहाँ पर एक quotation है जो Collins ने दी है। तो Collins ने जो quote दिया है वो है, "Give not thy tongue too great liberty, lest it take thee prisoner." That means, don't give too much freedom to your tongue. अपनी ज़ुबान को ज़्यादा आज़ादी मत दो। Don't speak too much, lest it take the prisoner. Otherwise, you will become a prisoner of your tongue. You will become a prisoner of your tongue. अगर आपने अपनी ज़ुबान को ज़्यादा आज़ादी दे दी तो इससे क्या होगा कि आप अपनी ही ज़ुबान के गुलाम बन जाओगे। You will become talkative. आप बस बातूनी बन जाओगे। एंड यू विल डू नथिंग एल्स, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं करोगे। तो यहाँ उसका कोड जो है वो ये कहना चाहता है कि अपनी ज़ुबान को ट्राई टू कंट्रोल योर टंग, अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। डोंट गिव इट टू मच फ्रीडम, उसको ज़्यादा आज़ादी मत दो, कंट्रोल इट। A word unspoken is like the sword in the scabbard. Scabbard actually there is a leather pouch, leather sheath. ये एक leather sheath होती है जिसमें तलवार होती है। So ये कहता है a word unspoken, जो लफ्ज़ ज़ुबान से ना निकला हो, is like the sword in the scabbard, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो तलवार अपने scabbard में, अपने मियान में होती है। So as long as the sword is in the scabbard, then it is under your control. And the same way, as long as a word is in your heart, it is safe and sound. Once, if wanted means to give it to the tongue, give it tongue, to speak it. If wanted, if you give a tongue to your thought, which is in your heart or in your mind, thy word is in another's hand. That means your words are not safe now. Once you speak the words, once you give tongue to your words, they are not now yours, it is in another's hand, and they will present it in whatever way they please. जब तक ये अल्फाज आपके दिल में हैं, आपकी ज़ुबान से नहीं निकले हैं, तब तक समझो आप सेफ हैं। अगर आप के ज़ुबान से ये दो लफ्ज़ से आज़ाद हो गया तो ये समझो कि ये दूसरों के हाथों में, आपकी बात जो है दूसरों के हाथों में आ गई। If thou desire to be held wise, be so wise as to hold thy tongue. So if thou desire, thou means you. If you desire to be held wise, if you want to be wise, then be so wise to hold your tongue. That means to control your tongue. Thy means your. अगर आप दाना बनना चाहते हो तो अपनी ज़ुबान जो है उसको काबू में रखना सीख लो। Now one should as such always remember this important lesson so that we may refrain from the malice of scandal mongering and backbiting. इसलिए हमें ये लेसन याद रखना चाहिए, हमें इस पर अमल करना चाहिए कि हमें अपनी ज़ुबान को हमेशा काबू में रखना चाहिए। Moreover, we should always recite this important prayer. अब यहाँ पर एक प्रेयर दी गई है। My God, guard my tongue from evil and my lips from speaking deceit. खुदा से दुआ करता है, Guard my tongue from evil, मेरी ज़ुबान को महफूज रखो बुराइयों से, and my lips from speaking deceit, और मेरे होंठों को भी
महफूज रखो धोखा देने से, गलत बयानी से। Be my soul silent those who reproach me, be my soul humble to all as the dust. So he prays for the humble soul, so that if anyone rebukes him, or if anybody says something bad to him, his soul be silent, he may be silent. तो ये कहता है कि दुआ करता है कि अगर कोई बुरा भला भी कहे तो मुझे इतनी हिम्मत दे, इतना हम्बल बना ले कि मैं साइलेंट रहूं, मैं वापस कुछ ना कहूं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है, ख़त्म होता है। विद दिस, थैंक यू।